Morning, friends. We have already finished the portion of the first unit test, first periodic test. Today I am going to take the revision, lesson 1, living in harmony. Okay? I am going to start the revision of the first chapter, lesson 1, living in harmony. So I will read and explain to you once again the chapter. Okay? Lesson 1, living in harmony. India celebrates the Independence Day, the Republic Day and Gandhi Jayanti as national days. These are national celebrations. These celebrations indicate to the world that India is an independent and sovereign state. You know that we always have these national festivals, that is Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti, all these are all national days, national festivals for us, and we celebrate it with lots of pomps and all. हम लोग इस ये जितने भी राष्ट्रीय पर्व हैं इन सबको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इससे क्या होता है पूरी दुनिया को इसके बारे में बताते हैं बहुत बढ़िया से। The whole world comes to know when we celebrate these important events and tell them that we are independent, we are sovereign state. हम सब आज़ाद हैं, हम सब एक हैं। That's what we tell. Let us be proud to be Indians. Every citizen who loves his motherland is a patriot. As long as there is patriotism in our hearts, India will march forward to progress and prosperity. So we should be proud. हमें गर्व होना चाहिए कि मैं एक भारतीय हूँ. That I am an Indian. I should be proud of it. And when we feel proud because of the patriotism. हमें एक तरह से देश के प्रति एक भावना पैदा हो जाती है. ठीक है, हम इसकी तरफ एक तरह से कर्मठ हो जाते हैं. हर एक व्यक्ति को, भारत के हर एक व्यक्ति को इस पे देशभक्ति दिखानी चाहिए अपने देश पे, अपने भारत पे. As long as there is patriotism in our hearts, India will march forward to progress and prosperity. जब तक हम में ये देशभक्ति है और हम देश के लिए सोचेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, तो हमारा देश ऊंचा उठता जाएगा. सब देश दुनिया में सबसे विशाल, सबसे महान एक देश बन जाएगा जब हम अपने देश के साथ देशभक्ति दिखाएंगे, उसके लिए कुछ करेंगे, उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, उसके लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखेंगे, तो हमारा देश दूसरे देशों से महान और बहुत ऊंचा हो जाएगा. The national flag, the national anthem, the national emblem, the national symbols, all symbols the national pride of every Indian and signify its rich and varied cultural heritage. तो हम लोग जो भी नेशनल सिंबल्स है, चाहे वो हमारा राष्ट्रध्वज हो, हमारा राष्ट्रगान हो, हमारे जो चिन्ह है, अशोक चक्र है, वो सब हमारी पेट्रियोटिज्म को दर्शाता है, हमारे देशभक्ति को दर्शाता है. और जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं और हम सारे भारतवासी, हमारे भारत में अलग अलग जगहों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं, अलग अलग भोजन व्यंजन बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब एक ही, हम सब भारतवासी हैं. सो वी ऑल आर इंडियंस एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट. Millions of Indians sacrifice their lives for the independence of our country. The prosperity we enjoy today is a result of the hard work of our great leaders who teach us the lessons of love and sacrifice. This is the culture which every Indian inherits from his motherland. तो हमें ये आज़ादी कैसे मिली? हमारे पूर्वजों ने अपनी जान गंवा के, अपनी जान को, भारत को आज़ाद करने के लिए गंवा दिया. उन्होंने सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफ को, अपनी खुशियों को, ताकि आज हम लोग उस आज़ादी को एंजॉय कर सके, उस आज़ादी को भरपूर आनंद ले सके. आज जो हमारा भारत है वो क्यों है, किसके कारण है? सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के कारण जिन्होंने भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया,
जिन्होंने अपनी जान दे दी, अपनी सारी खुशियों को भारत को आज़ाद कराने के लिए न्यौछावर कर दिया। इस वजह से आज हम ये आज़ादी अनुभव कर रहे हैं और इतना कुछ हम कर पा रहे हैं। Mahatma Gandhi was a great leader, a teacher, and above all a father who cared for the welfare of the poorest in every village. He stood for the unity of the country and advocated that every Indian, irrespective of caste, creed, or religion, must live in harmony. He showed the dignity of labor and equality of human beings. The nation pays honor and respect to this Mahatma by celebrating his birth anniversary on 2nd October. Now, Mahatma Gandhi, we know that, हम जानते हैं महात्मा गांधी जी ने क्या नहीं किया हम लोगों के लिए। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अंग्रेजों से लड़ते हुए हमें आज़ादी दिलाई। उनका सबसे जो खास मकसद था वो था कि भारत के जो गरीब हैं उन्हें उठाना है, जो बैकवर्ड कास्ट के थे, उनके लिए कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, उनके लिए बस एक ही था कि हम सब भारतवासी हैं, हम सब एक हैं। That's what he always thought of. He never thought that he is Hindu, he is Muslim, he is Sikh, or he is backward caste, or he is black, or he is white. No, he had only one religion, that is religion of humanity, religion of harmony, oneness, one India. That's what he always thought of. और उन्होंने इसके लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, लोगों को जागरूक किया, और हमेशा उनके जन्मदिन जो है 2 अक्टूबर को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, उनके हर एक काम को याद करते हैं। The martyrdom of Mahatma Gandhi, father of the nation, is a symbol of sacrifice of millions of Indians who got freedom for the country. All of us also pay homage to him on 30th January, the Martyrs' Day. महात्मा गांधी को जब मारा गया, कब मारा गया? 30 जनवरी, ठीक है। तो 30 जनवरी जब उनकी मृत्यु होगी, उस दिन हम एक मार्टरडम डे मनाते हैं कि जितने भी लोग मरे थे उस दिन उन सभी लोगों को हम याद करते हैं। जितने लोग मरे थे सबको हम याद करते हैं, क्योंकि इन सब के वजह से ही आज हम आज़ादी पाए हैं और हम लोग उस आज़ादी को अनुभव कर रहे हैं। कितने ही भारतवासी थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी आज़ादी को पाने के लिए। Indians are known for their gaiety and cheerfulness. Celebration is in our culture. We celebrate in families, in communities, in the states, and also at the national level. There are culture as well as religious celebrations. हमें पता है कि हमारा भारत देश जो है वो कई धर्मों को मानता है, कई भाषाएं बोलता है, कई प्रकार की जातियां हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। हम लोगों को जो हम लोग हमारा जो भारत है वो एक हंसता खिलता देश है। सब भारत को अपनाने की कोशिश करते हैं कि हम जो है हर एक को मुस्कुराते हुए देखते हैं, चाहे वो दुख में हो चाहे तकलीफ में हो, तब भी वो मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि हम सब एक है और हमें ऐसा ही एक कल्चर चाहिए। Cultural celebrations, we bring all people of the neighboring villages together for fun and merriment. Some villages are famous for their cattle meals. Harvest festivals are celebrated in every state of the country. Food mela is picking up in cities and towns. Boat races, cock fights, camel races, flying of kites and balloons, flower shows, animal fair, etc. are the attractions of these melas. So, cultural celebrations होते हैं। जब भी देखो दिवाली, जब दशहरा जब आता है, दशहरा का मेला लगता है, दिवाली का मेला लगता है, ईद के समय ईद का मेला लगता है, क्रिसमस के समय क्रिसमस का मेला लगता है। तो ये गुरुपुरब के समय उसका गुरुपुरब का मेला लगता है, तो बैसाखी के समय बैसाखी का मेला लगता है। बहुत मेले लगते हैं और सब अलग अलग धर्म के, ठीक है। उसके बाद जब ये मेले लगते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी धर्म के लोग नहीं जाते हैं, सब लोग जाते हैं। उसमें कोई धर्म या जाति नहीं देखते हैं कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या ये ईसाइयों का मेला है तो हम क्यों जाएं, ऐसा नहीं है। सब एंजॉय करते हैं। ये जो फेस्टिवल्स हैं, ये जो मेले हैं, हम सबको एक बनाते हैं। दैट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर इंडियन कल्चर, इंडियन फेस्टिवल, दैट आवर फेस्टिवल्स यूनाइट अस ऑल।
It doesn't see whether you are a Hindu, you are a Muslim, or you are a Sikh or Christian. Nothing. We all are Indians. We all are human beings. We all are Indians. That's the important during these festivals. It brings us closer to each other, and bond of love becomes more and more strong. Religious celebrations bring people of all religions and castes together. Generally, these celebrations are centered around famous temples and shrines. तो ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं? जहाँ पे फेमस टेम्पल्स हैं या श्राइन्स हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा भावनाएं होती हैं, वहाँ ये मेले लगते हैं और वहाँ पे सारे लोग मिलने आते हैं, घूमते हैं। यहाँ तक कि दूर दूर देशों से भी लोग आते हैं इसे देखने के लिए, इस भाईचारे को देखने के लिए, इस भाईचारे में आनंद उठाने के सब पहुँचते हैं। The Rath Yatra of Lord Jagannath in Puri, the Kumbh Mela, the pilgrimage to the shrine in Ajmer, Velangani festival in Tamil Nadu, the Sabrimala pilgrimage of Kerala, etc. attract millions of people from all over the country. That's the thing. Rath Yatra, चाहे वो जगन्नाथ का रथ यात्रा हो पुरी में, या कुंभ मेला हो, या दरगाह शरीफ अजमेर में हो, या वेलंगनी जो क्रिश्चियंस का है वो हो, सब जगह लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, दुआ करने के लिए। उनकी जो दुआएं पूरी नहीं होती वो इन जगहों में जाते हैं, मांगते हैं और वो पूरी होती है। ये नहीं देखते कि ये क्रिश्चियन का मंदिर है या ये हिंदू का मंदिर है या ये मुसलमान का मस्जिद है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ उन्हें उनकी दुआएं पूरी हो जाती हैं, जहाँ उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है, प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है, वहाँ सब जाते हैं। और ऐसा नहीं सोचते कि ये उसका है या इसका है, ऐसा नहीं, सब यही सोच के जाते हैं कि ये मेरा है, हमारा है, हम सब भारतवासी हैं। We all are Indians. That's there in the mind, in the heart, and that's why they go all these places and praise and worship to the Lord and get the response from the God for this prayer. Every religion teaches us about the God who cares for all. God gave us rivers, seas, hills and mountains without restricting them to any one religion or region. The rain falls on the good and the evil alike. The rainwater floods rivers that run down hills and mountains, washing and bathing Hindus, Muslims, Christians and Sikhs who wish to step into them. Every religion teaches about the God who cares for love. सारे के सारे धर्म एक ही चीज़ सिखाते हैं कि हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए। कोई धर्म ये नहीं कहता कि उससे प्रेम मत करो, उस धर्म से प्रेम मत करो या इस धर्म से प्रेम मत करो, कोई ऐसा धर्म नहीं कहता। सबके धर्म में सिर्फ यही कहा जाता है, ईश्वर एक है, भले ही उसके नाम अलग हैं लेकिन ईश्वर एक है। हमें हर धर्म के लोगों से प्रेम से रहना चाहिए, सभी। कोई ये नहीं कहता कि उससे लड़ाई करो, इससे लड़ाई करो, या उसको मत पूजो, इसको मत पूजो, ऐसा कोई नहीं कहता। सारे धर्म ग्रंथ में यही लिखा गया है कि ईश्वर एक है, हमें हर एक मनुष्य से प्रेम के साथ रहना चाहिए। वी शुड लिव इन लव with everyone, and that's what all the religious scriptures books tells us. हम देखते हैं सूरज जब उगता है वो ये इसलिए नहीं उगता कि सिर्फ वो हिंदुओं में गिरेगा, उसकी रोशनी सिर्फ हिंदुओं को मिलेगी, या उसकी रोशनी सिर्फ मुसलमानों को मिलेगी, या उसकी रोशनी सिर्फ अमीरों को मिलेगी, या उसकी रोशनी सिर्फ गरीबों को, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने तरीके से उगता है और सब पे बराबर रोशनी डालता है। उसी प्रकार जब बारिश होती है, जब बारिश होती है ये नहीं होता कि हाँ ये अमीर का खेत है तो इसी खेत में पानी बरसाओ कि इसकी खेती अच्छे से पले और गरीब की खेती को बर्बाद कर दो, ऐसा नहीं है। वो सब पे बराबर गिरता है। वो तो मेहनत का फल है कि कौन कितना ज़्यादा मेहनत करता है उसको उसी हिसाब से फल मिलता है, लेकिन जो बारिश होती है वो सब पे बराबर गिरती है। Hindus wear the vermilion tilak on their foreheads, Sikhs wear the turban, Muslims wear their caps before prayer, Christians wear cross. These external symbols signify the God who created Hindus, Muslims, Sikhs, Christians and every other living being. तो हम सब का अलग अलग तरीका है। हिंदू लोग टीका लगाते हैं, ठीक है, तिलक लगाते हैं, मुस्लिम्स टोपी पहनते हैं, सिख पगड़ी पहनते हैं, क्रिश्चियंस क्रॉस लगाते हैं, गले में क्रॉस पहनते हैं। तो सब अपना अपना धर्म को बताने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब अलग हैं, सब एक हैं। ऑल आर वन, ऑल आर यूनाइटेड in spite of different caste, creed and religion. So, respect all religions, grow as a mature adult in a world of such
mature adults, there shall always be peace and happiness. That's why we say that we should respect all religion. We should live with all the people, enjoy all the festivals because it brings all of us together. जब आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, आप लोगों को क्या करना है कि हमें सबके साथ में, आपके क्लास में सारे सब बच्चे होते, सब एक ही धर्म के तो है नहीं, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, ऐसे ही तो है। तो क्या करना है, ये नहीं कि मैं हिंदुओं से हिंदुओं के साथ ही बैठूंगा, क्या मैं मुस्लिम मुस्लिम्स के साथ बैठूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सब एक साथ ही बैठते हैं, सब एक साथ बैठते हैं, सब एक साथ खेलते हैं, सब एक साथ पानी पीने जाते हैं, सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेम, जो प्यार आप लोगों ने अपने क्लास में जो डेवलप किया है इस उम्र में, यही चीज़ आगे भी बढ़ती रहनी चाहिए। इसे जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, इसे कम नहीं करना है, इसे और बड़ा करना है। एक दूसरे के घर आना जाना चाहिए, एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेना चाहिए, एक दूसरे के प्रेम में और बढ़ना चाहिए जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। दैट्स द स्पिरिट ऑफ अ इंडियन। I believe you might have understood the chapter. Thank you. Have a nice day.